This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. Before I say something, a warm welcome to Dr. Aravind Kushwaha, All India Institute of Medical Sciences from Nagpur. Welcome to this show once again, sir. As and when you come. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you. Wonderful. But as and when you come, it is the latest in the larger public interest. जब भी आप आते हो, कुछ ना कुछ जो हमारे जन परिवार को चाहिए, सब कुछ आप उनके सामने आधार के तौर पर, संविधान के तौर पर और हमारी कानून के तौर पर जो आप पेश करते हैं, आपको बहुत बहुत डॉक्टर TSPR चैनल से धन्यवाद और हमारे व्यूअर्स से और हमारे जन परिवार से भी आपको धन्यवाद कहते हुए हम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को अपना जो बात रखने का या जो ट्रुथ रखने का एक मौका मिल रहा है, लोगों को समझाने का मौका मिल रहा है कि सच्चाई क्या है, उसमें उनको जानने का मौका मिल रहा है। ये आप लोगों ने भी हमें एक बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका कि आपने हमें ऐसा मौका दिया है कि जनप्रतिनिधि तक लोगों तक हम पहुंच सकें, अपनी आवाज पहुंचा सकें कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या सच्चाई नहीं है, ये भी बता सकें। पक्का सर। तो आज की लहरों की बात करते हैं हम, the waves theory of fear, how those people who doesn't understand science, even if they understand, they don't want to speak truth. If they don't understand science, if they don't speak truth, what will happen? They are going to enforce their personal agendas on people, so that the people's freedom is once for all curbed. If you remember Dr. Kushwaha-ji, on 16th December 2021, when his friend Dr. Anjali Koetji, the discoverer of Omicron, was on the show, he was very categorical, and it was in the company of our modern Ghalib, the leading epidemiologist, Dr. Amitabh Banerjee, one of the most versatile, honest speakers. Just keep listening to him. Such a wonderful man. God bless him. Such wonderful guest. Listening to sir. So, on that day, he was very categorical. He said this Omicron is going to be the nature's natural booster, immune booster, so that after this everything will go away. So, आपके जो बात कही 16 दिसंबर 2021 को, तो वही सच हो रहा। ओमिक्रॉन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनके सब कुछ जो लालच सोच वो पर्दाफाश हो जाएगा और लोगों को आजादी मिलेगी ताकि विज्ञान और वैज्ञान उनको स्वीकार करेंगे। तो इसी मुद्दे से आज आपको मैं प्रेजेंटर बनाता हूं सर। सो yes sir, you are the presenter. तो आज हम आपको लहरों में ले जाएंगे. We will take you through the waves of fear so that your fear goes off. When will your fear go away? When you are fully informed, truly informed. So that information, आप ये डर से कब बाहर आएंगे, लहरों की डर से, तब आपको समाचार आपके साथ हो और सही समाचार जो कानूनी हो, संविधान हो, आधार के साथ हो, ताकि आपकी आजादी, जिंदगी और चिकित्सा या निवारण निर्णायक आप ही होंगे. Yes sir, please. So just a moment. Yeah, no issues. So once you have such wonderful information with you, this fear will go away. You will start questioning first yourself, because with this science, truth will prevail. Not only that, your freedom to live and to think what sort of treatment you need, what sort of prevention you should take. We have been doing shows even on courts,
Unfortunately, there are not many science graduates who are judges. There's nothing like it. But they are commenting what is science. What is science? Please let us debate. Supreme Court and High Courts, we are ready to debate. Because of science, we are surviving. Let us not forget. It is the science. Because of science, we are here. Yes, sir, please. Sir, just a moment. I'm just. No issues, no issues. Can Yeah, you see wonderful. my screen? Yes, sir. थोड़ा आपका फ्रेम थोड़ा नीचे करिए ताकि आपका पूरा फेस दिख जाए और थोड़ा Okay. या दैट्स वंडरफुल और साथ में आप थोड़ा ऊंचा बोलने की अगर प्रबंध हो Sure, sure. I'll try my best. गो अहेड सर प्लीज गो So, अहेड नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे कि इस पेंडेमिक के दौरान जो एक सबसे बड़ा इस पेंडेमिक को ड्राइव करने वाला जो कह दीजिए ड्राइवर था, वो था फियर। फियर फैक्टर, फियर के ऊपर ही ये पूरा पेंडेमिक आधारित था, अभी तक है। और जो इसके जो भी इसके पीछे ताकतें हैं, वो इसको आगे भी जिंदा रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फियर के आधार पर। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये फियर नंबर एक तो कि कितना जायज है, नंबर दो ये फियर कैसे पैदा किया जाता है, और अगर आपको सही जानकारी होगी तो आप इस फियर या डर से बाहर आ पाएंगे। रेड्डी साहब को याद होगा, मैंने उनके साथ शेयर भी किया था, एक फियर के ऊपर ही मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी। ये पैंडेमिक का आधार जो डर है, वो कैसे इस पूरे पैंडेमिक को ड्राइव कर रहा है, और मैंने उसको कोरोना की जगह डरोना नाम दिया था। तो ये डरोना ही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। तो अभी जो सबसे नया डर जो हम लोगों के सामने परोसा गया है, या कह लीजिए कि लाया गया है, मीडिया में लाया जा रहा है, डेलिबरेटली लाया जा रहा है, जानबूझकर लाया जा रहा है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो आप ये महसूस करने लग जाएं कि अरे कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो सब लोग नॉर्मल हो गए, अब तो लोग मास्क भी नहीं पहनते इतना, अब तो रैलीज भी हो रही हैं, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया अब तो। पर ऐसा नहीं है, वो आपको ऐसी फीलिंग आनी नहीं चाहिए। लोग नहीं आने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप अभी भी डर में ही रहें। और इसी के लिए एक आपने अभी कुछ दिन से पहले देखा होगा, फोर्थ वेव इन इंडिया ऑफ कोविड-19, इसके ऊपर आर्टिकल्स आने शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ भी लगातार इस तरह की खबरें दिखाता है कि नया माइक्रोन ओमाइक्रोन का नया वेरिएंट यहाँ डिस्कवर हो रहा है, वहां डिस्कवर हो रहा है। कहने का पूरा मतलब ये है कि आप इस डर से बाहर मत आइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए अच्छा जरूर है, पर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज आज समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो डर है वो पूरी तरह से एक नकली डर है जो आपके सामने बनाया जा रहा है, जिससे कि आप वो सब करें जो ये आपसे करवाना चाहते हैं। तो फोर्थ वेव के ऊपर हम आज बात करेंगे, और ये कैसे कहां से आया है इसका कहानी, और किस तरह से ये कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर पेंडेमिक्स जो होते हैं, वो आखिर उसके बारे में क्या पहले से हमारे पास जानकारी है कि क्या ये वेव्स कोई नई चीज है, कोई नई थ्योरी है, या कुछ सब कुछ हमको पहले से पता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेंडेमिक्स जो है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत पहले से जमाने से ये जानकारी है कि कोई भी नया पेंडेमिक या नया इन्फेक्शन या नया एपिडेमिक जब आता है, तो बाकायदा वो वेव्स में ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों होता क्या है कि जब पहली बार आता है तो लोग एकदम ससेप्टेबल होते हैं, पूरी पॉपुलेशन ससेप्टेबल होती है, तो वो कोशिश करता है कि आके अपना फोर्सफुली उसको एंटर करता है पॉपुलेशन के अंदर, और धीरे से जब ससेप्टेबल पॉपुलेशन कम हो जाती है तो अपने आप डाउन हो जाता है। और इसके बाद वो बार बार आता रहता है जब तक आपके अंदर जो सारे जो आपकी पॉपुलेशन है वो सैचुरेट नहीं हो जाती। आप समझ रहे हैं, सैचुरेशन नहीं हो जाती। तो ये सैचुरेशन हमारी ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, सेकेंड वेव के बाद जब सीरो सर्वे किया था आईसीएमआर ने,
वो सैचुरेशन सामने आ चुका था कि ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया had been exposed to the virus, that is the new virus, whether it was, we can call it delta virus, whether we call it omicron, whether we call it SARS-CoV-2, anything. तो कहने का मतलब ये है कि इसको इंडियन पॉपुलेशन को वो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका था सेकेंड वेव तक। पहली वेव थोड़ी छोटी थी, सेकेंड वेव थोड़ी ज्यादा थी, पर ऐसा होता है, ऐसा कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव के बाद जो हमारी डेटा सामने आया है उससे बहुत साफ हो गया कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर एक्सपोज हो चुकी थी। और आप देखेंगे कि ये जो वेव्स में आता है उसके दो मुख्य कारण रहते हैं। पहले तो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के अंदर अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी नहीं हुई होती है, तो वो अभी भी ससेप्टेबल होते हैं। और इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है नए वेरिएंट का आना। जैसे कि अगर मैं आज ये कहना चाहूं पीछे देख करके, मुड़ करके, सेकेंड वेव का मेन ड्राइवर था आपका डेल्टा वेव। अगर डेल्टा वेव नहीं आया होता, यानी डेल्टा वेरिएंट नहीं इमर्ज हुआ होता, अगर पहले वाला ही वायरस होता, तो सेकेंड वेव भी इंडिया में फर्स्ट वेव से ज्यादा या उससे कम ही होती, ज्यादा नहीं होती। लेकिन चूंकि वेरिएंट नया हो गया तो थोड़ा सा उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाता है, तो इसके कारण वो सेकेंड वेव थोड़ा सा ज्यादा हुआ। और ये भी हमें पता है कि पैंडेमिक्स के अंदर, वायरसेस के अंदर, ये जो नेचुरल चेंज आता है, यानी नए वेरिएंट्स का जो डेवलपमेंट होता है, ये भी एक नेचुरल व्यवस्था है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, कोई नई चीज नहीं है। ये कोई पहली बार किसी पैंडेमिक में नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अब हमें ये समझना है कि आखिर इस पैंडेमिक में क्या अलग है, पहले के पैंडेमिक के मुकाबले ये पैंडेमिक किस तरह से अलग है। और इस पैंडेमिक में ये जो मॉडल्स हमारे सामने आते हैं, जिन एपिडेमिक मॉडल्स आते हैं जो पहले से फोरकास्ट करते हैं कि ये वेव आएगा, फलाना वेव आएगा, ठिकाना वेव आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ वेव आएगा, आखिर ये कौन बना रहा है मॉडल्स, उसके पीछे क्या उनकी मंशा है, और क्या वो मंशा पूरी तरह से अच्छी है या नहीं है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले तो अच्छी चीजें बताता हूं कि ये जो डिजीज मॉडलिंग होती है, जो मॉडल्स आते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो फायदे अच्छे हैं, उसकी इंटेंशन अच्छी है, तब तक ही वो अच्छे हैं। अगर उसके पीछे अगर दूसरी इंटेंशन लगा दी जाए कि हमने कुछ और इस पे हमने जनरेट करना है, तो डिजीज मॉडलिंग खराब हो जाती है। पहला मतलब है उसकी अच्छाई है कि सबसे पहली बात है कि एक देश को ये पता लग सकता है कि हमें आगे आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का जो है केसेस आ सकते हैं, कितने केसेस आ सकते हैं, कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ सकता है और कब आ सकता है। तो हमें एक तैयारी करने का मौका मिल जाता है। जैसे कि फर्स्ट वेव और सेकेंड के बीच में हमारे को कई महीनों का गैप मिल गया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4 से 5 महीने या 6 महीने का गैप मिला था। तो उस गैप के दौरान हमने जो करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि हमारी अपनी तैयारी जो है अगले सेकेंड वेव के लिए करनी चाहिए। जो तैयारियां नहीं की गई तो वो फेलियर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसमें किसी हमारे एक आम जनता का कोई भी दोष नहीं था। इसमें बाद में ये बात अलग है कि सारा दोष सेकेंड वेव का जनता के ऊपर डाल दिया गया कि भाई आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। जबकि कायदे से देखा जाए ये जो टाइम मिला था, इस दौरान हमारी प्रिपरेशंस होनी चाहिए थी। और मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैं कई डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के और महाराष्ट्र स्टेट में जाकर के मैंने कई जगह पे ये चीजें देखी, और उनकी प्रिपरेशंस बहुत पीछे चल रही थी। और मैंने अपनी रिपोर्ट्स में ये बहुत क्लियरली ब्रिंग आउट किया कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो अप टू डेट नहीं है, आप बहुत पीछे हैं, आपको हो सकता है मुश्किल हो जब सेकेंड वेव आएगा। और उसके बारे में भी मैंने बता दिया था कि सेकेंड वेव आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन जो पहले वेव में था वो बहुत कम इफेक्ट हुआ था, और उसका भी इफेक्ट होना भी अलग अलग स्तर पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ढंग से हुआ था।
जैसे कि कुछ जगह हैं वो पूरी तरह से सैचुरेट हो गई थी, जो कंजेस्टेड एरियाज, स्लम एरियाज होते हैं, वो कंजेस्टेड एरियाज बिल्कुल सैचुरेट हो गए थे फर्स्ट वेव के अंदर। और जो स्प्रेड आउट एरिया होता है, वेल टू डू लोग होते हैं, उनका जो एरिया था वो अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ था, तो अगले वेव में उनका अफेक्ट होना लाजमी था, और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से जानकारी दे दी थी। और ठीक वैसा ही सेकेंड वेव के अंदर हुआ कि जो सैचुरेटेड एरियाज थे, जो स्लम एरियाज थे, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था, उनको सेकेंड वेव में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जो तकलीफ उनको हुई जहाँ पे कि इन्फेक्शन का पहले जो है कह लीजिए एंट्री नहीं हुई थी, ऐसे एरियाज में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, रिच एरियाज, जो लोग बहुत अच्छी जगह पर रह लेते हैं, जिनको की वेंटिलेशन के इश्यूज नहीं होते, जिनको ओवर क्राउडिंग के इश्यूज नहीं होते हैं, तो उनको हुआ था। तो कहने का मतलब है कि अगर मॉडल अच्छा है और टाइमली बताया जाता है, तो इससे देश को, या जो भी स्टेट होगा या जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उसको एक एक आइडिया लग जाता कि हमको कितनी तैयारी चाहिए और हमारे पास कितना टाइम है इस तैयारी को करने का। बहुत अच्छा ये उपयोग हो सकता है डिजीज मॉडलिंग का। लेकिन जो अभी हमने देखा है इस पैंडेमिक के दौरान, ये जो मॉडलिंग है, इसका बहुत बड़ा उपयोग, बहुत बड़े स्तर पे उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ लोगों में डर को पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और ये एक तरह का टूल बन चुका है जिसके द्वारा आप पूरे पॉपुलेशन साइकोलॉजी को ही ऑल्टर कर सकते हैं, यानी पूरे पॉपुलेशन साइकोलॉजी को ही आप पीआर में डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपके हर सही या गलत फैसले को भी वो चैलेंज ना कर सके, और वो उसी तरह से डर में रहें जैसे कि आप उन्हें रखना चाहते हैं। तो एक आपको याद होगा, सूत्रा मॉडल के ऊपर काफी बातचीत हुई थी, जो कि 3-4 जो बड़े बड़े एक आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और एक हमारे आर्मी के एक जनरल साहब थे, तीनों ने मिलकर के वो सूत्रा मॉडल तैयार किया था, और काफी इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, जो सेकेंड वेव के बारे में बताया गया था। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है कि वो सूत्रा मॉडल जो है वो जो है किस तरह से कामयाब हुआ या नाकामयाब हुआ, वो सबको पता है। तो ये जो सूत्रा मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे सेकेंड वेव के लिए बनाया गया था। उनका जो मॉडल है सूत्रा, इसका मतलब होता है ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, रिकवर्ड या रिमूव, अप्रोच फॉर मॉडलिंग। तो ये जो है इसके जो ऑथर्स हैं वो नीचे मैंने स्लाइड पे लिखे हुए हैं। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल साहब थे आईआईटी के, और प्रोफेसर विद्यासागर साहब थे चेन्नई से शायद, और एक डॉक्टर माधुरी कनिटकर साहब थे जो डिप्टी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे। तो इन तीनों लोगों ने एक ये पेपर पब्लिश किया था, जो कि सेकेंड वेव के बारे में काफी चर्चित हुआ था। तो इस सूत्रा मॉडल में बेसिक कंसिडरेशंस क्या थे कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल था, ये दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, एक होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल। एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली पूरे सारे चीजों को कंसीडर करते हुए किए जाते हैं, और मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं वो एक तरह के सिर्फ कह लीजिए बैठ करके आप लैपटॉप से बना सकते हैं, जिसमें कि ज्यादा एपिडेमियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है, जो कि आप कह लीजिए कि जो इन्फेक्शियस डिजीज का जो ज्ञान होता है वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सेकेंड वेव का जो मॉडल था, जो सूत्रा मॉडल था, वो काफी हद तक फेल हुआ और नाकामयाब रहा। इसकी काफी जो है क्रिटिक हुई, और काफी इसके बारे में जो है चर्चा भी हुई कि भाई ये सही तरह से नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। तो बेसिकली इसमें पैरामीटर्स जो यूज किए जाते हैं, एक तो होता है बीटा कोफिशिएंट या कांटेक्ट रेट, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और वो डिपेंड करता है आपके आर वैल्यू पे, आर नॉट वैल्यू पे, आर जीरो वैल्यू पे, यानी कि एक आदमी से कितने केसेस बनते हैं। फिर होता है कि कितने दूर तक जाएगा, कितने लोगों को ये अफेक्ट कर पाएगा, यानी कि रीच। और तीसरा होता है कि रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केसेस आपके पॉपुलेशन के अंदर। ये तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको मिलाकर के एक इक्वेशन बनाते हैं, और उससे वो आप बताते हैं कि भाई आखिर कितने केसेस आ सकते हैं। तो ये सूत्रा मॉडल जो था, वो आपको पता है कि इसकी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफी इसकी क्रिटिक हुई, क्योंकि ये काम नहीं किया सेकेंड वेव, काफी उसके मुकाबले में काफी ज्यादा फियर्स थी, और
ये जो है उन्होंने बोला था कि भाई सेकेंड वेव इज वेरी अनलाइकली, दिस सूत्रा मॉडल सेट, बट यू नो दी सेकेंड वेव वाज फेरोशियस इन इंडिया, और बहुत ज्यादा जो है इसके कारण एक कॉम्प्लासेंसी आप कह सकते हैं वो हमारे उसमें आया। तो ये मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जब मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है तो वो काफी जो है गलत हो सकती है, और इससे जो है आपको डायरेक्शन या कह लीजिए दिशा है वो काफी गलत हो सकती है। तो अब आते हैं हम आपको जो नया मॉडल फोर्थ वेव का मॉडल आया है, ये थर्ड वेव का मॉडल है। अगर आप इस पे स्लाइड पे देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में है वो इंडिया के केसेस हैं, और जो जिम्बाब्वे के केसेस हैं वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि भाई किसका सबसे क्लोजेस्ट मैच होता है। ये जो मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल मॉडल है, तो इसमें ये देखा जाता है कि किसका जो ग्राफ है वो दूसरे ग्राफ से या दो ग्राफ से किसकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया का ग्राफ लेते हैं, यूएस का ग्राफ लेंगे, यूके का ग्राफ लेंगे, जिम्बाब्वे का लेंगे, साउथ अफ्रीका, 10 15 20 कंट्रीज जो भी मिलती है सबका मैच करें, और जिसमें वो सबसे ज्यादा मैचिंग मिलेगा वो उसके आधार पे वो अगले वेव का प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये इनकी बेसिक मेथोडोलॉजी यही है कि जो पुराने वेव्स जो यानी फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में जो भी डेटा मिला होता है उसके आधार पे वो मॉडल को दूसरे कंट्रीज के साथ मैच करते हैं, और जिसमें मैचिंग अच्छी हो जाती है उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, मॉडल को ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद वो हम अगली वेव का प्रेडिक्शन उसी आधार पे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये है, एक बेसिक अजम्पशन जो इसमें रहता है वो ये है कि ये जो मॉडल है इसमें एक चीज रहती है कि सार्स जो वायरस है उसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं होने वाला, यानी नया वेरिएंट नहीं आने वाला। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वेरिएंट चेंज हो गया तो आपका पूरा का पूरा मॉडल फेल हो सकता है। तो ये बेसिक अजम्पशन है, बट ये हर एक मॉडलिंग का कुछ ना कुछ कमियां होता है, तो इसमें भी ऐसा अगर कमी है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इंडिया का जो मॉडल है वो जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका के ऊपर इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो वो देखा कि फोर्थ वेव इंडिया में अगर हमें प्रिडिक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के जो ग्राफ थे उन्होंने उनको रखा, इंडिया के ग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव के उनके ऊपर लगाए, और देखा कि मैचिंग कितनी हो रही है। अगर मैचिंग हो रही है उसके बाद हम फोर्थ वेव वहां अगर चल रही है जो कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में ऑलरेडी चल चुकी है, उसके आधार पे हमने उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आखिर इंडिया में वो वेव कब आएगी और कितनी आएगी और कब तक रहेगी। इसके बारे में प्रेडिक्शन करने की कोशिश की गई है। अगेन आईआईटी कानपुर के इसके जो ऑथर्स हैं उन्होंने किया है। ये आपको मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूँ कि फोर्थ वेव के बारे में क्या प्रेडिक्शन किया गया है। जैसे कि इसके जो मेन ऑथर्स है, एक है सबरा प्रसाद राजेश भाई, शुभ्रा शंकर धर, और एक कोई शलभ जी हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में काम करते हैं। उन्होंने ये अपना प्रेडिक्शन दिया है कि फोर्थ वेव इंडिया में वो जो है 22 जून के आसपास शुरू होगी। ऐसा लगता है शायद इतना ज्योतिषी भी इतना एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप जो है किसी इवेंट को जिन्होंने जितना एक्यूरेटली ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ये जॉल समझ नहीं आ रहा कि अगर वो वेव जब शुरू होती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो कैसे लेते हैं, किस तरह से डिटरमिन करते हैं, वेव किसको बोलते हैं, कब वो एंडेमिक लेवल से ऊपर जाता है कि जब वो वेव शुरू होता है, किस तरह से उन्होंने लिया है, ये इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं। लेकिन नहीं कहने का डॉक्टर जी, मतलब ये कि उनका हाँ जी बोलिए डॉक्टर रेड्डी जी, सर। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर से है, लेकिन ये सर कानपुर से ये लोग आईआईटी लोग पेशावर जो है ये लोग इंजीनियर्स है, सर ठीक है, सर लेकिन आप जो है डॉक्टर है, सर तो जो स्वास्थ्य के लिए आपसे आपके तरफ से आना चाहिए। अगर मैं सर गलत हूं तो मेरे को, मैं क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक्चुअली एपिडेमिक डिजीज मॉडलिंग, अनलेस यू इन्वॉल्व एपिडेमियोलॉजिस्ट, यू शुड नेवर indulge in such creation of models, because your models can create fear, they can create panic in the population, in the government machinery. तो अब ये आपको देखा होगा, आपको याद होगा रेड्डी साहब, हमने जब तीसरी वेव की भी बात करी थी, मुझे याद होगा कि जब हम ओमाइक्रोन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि नवंबर दिसंबर के आसपास फ्लू सीजन स्टार्ट होता है इंडिया में।
तो अगर फ्लू सीजन स्टार्ट होता है, यानी कि जो अभी तक चल रही जो इंसिडेंस या है, जो उसका जो खांसी जुकाम का इंसिडेंस है, वो बढ़ेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नेचुरली बढ़ता है, फरवरी मार्च तक। तो अगर इसी बढ़े हुए इंसिडेंस को आप अगर नाम देना चाहें थर्ड वेव, तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैंने आपको उसी टाइम प्रेडिक्ट किया था कि इसको थर्ड वेव नाम दिया जाएगा। याद है आपको रेड्डी साहब? Yes, और वैसा sir. ही हुआ, वैसा ही हुआ कि थर्ड वेव से नाम दिया गया। ये अलग बात है कि उनको जो चीज धोखा दे गई वो ये थी कि थर्ड वेव तो हुई, लेकिन लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। जब हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचे तो वो वेव किस काम की? यानी कि सिवा उसका काम एक पैनिक फैलाने के अलावा पॉपुलेशन में और कुछ भी नहीं रहा। आपके कोई भी हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म नहीं हुए, आपकी कोई हॉस्पिटल जो है इवन 25% कैपेसिटी तक नहीं पहुंचे। तो आप सोच सकते हैं कि वो वेव नहीं थी, थर्ड वेव जबरदस्ती आपने क्रिएट की और उसे जो है लोगों को प्रचारित किया जिससे लोग डर जाएं। और जब थर्ड वेव सो कॉल्ड खत्म हो रही, सो कॉल्ड थर्ड वेव, मैं उसे थर्ड वेव मानता ही नहीं कभी भी। ठीक है, अगर मान भी यहाँ पर लेते हैं। मैं और एक भी जोड़ना चाहता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सडनली दिसंबर 25 को आके बूस्टर की बात कही, बच्चों की करेक्ट, वैक्सीन। और करेक्ट, जो बच्चों की जब वैक्सीन की जब उन्होंने बात किया, वही जो टीम है जो हेड कर रहे थे, the one who was heading the team, he spoke something else. He करेक्ट। clearly stated that many children in the age group of 15 to 17 died during the second wave. ये लहर वेव की बात तो मैं जानता हूं ही नहीं, मैं मानता हूं ही नहीं. I don't believe in this nonsensical waves. But बिल्कुल। because as a science man, as a man of science, so he says so many children have died. And रॉन्ग। Prime Minister comes and on December 25th, he makes an announcement दैट वाज अ मिस इन्फॉर्मेशन। making fun of the Prime Minister's office. That is why since then we have been asking, what happened to that? Why did he withdraw? Come on, prove PMO's office or Prime Minister or ICMR or the gentleman. And because his own committee member, Dr. another बोलिए, gentleman, बोलिए। Puliel, he was very categorical and clear, stating that no children in that age group died and there is no need for any vaccine at all for यस, children. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज द When it was ओपिनियन दैट exposed, वाज। when it was exposed, Supreme Court going on trial did not pick up these points. We were providing evidences. Even we questioned Prime Minister M. Tagi, Chief, what happened to that? करेक्ट। Can you prove that? लेकिन And how is that you have, on that assumption, you have announced, you made या people to serve immediately, you got them into booster, you got vaccines for children. Because of our shows with science and truth and freedom, everything went die, started to die its own natural death. And as you rightly said, during that natural November, December, normal infections will be there because of cold. You wanted to certify that, but God is great. Nowhere across India, hospital, no people were visiting hospitals. No one demanded oxygen, no one demanded ventilator, no one demanded hospitalization. So in spite एब्सोल्युटली। of Prime Minister trying to create their fear psychosis because of this Ntagi chief and all those Indian Council of Medical Research, it has died down. Because same thing the Honorable Prime Minister had done on January 2021. When everything was settling down, he announced vaccines. We then asked, why do you need a vaccine when there is so much of natural immunity and people are coming back and when everyone is happy? एंड नाउ द Because they were सीडीसी already manufactured vaccines and they wanted to sell. Unfortunately, they made use of the Prime Minister's office in a democracy. And then not just Prime Minister, all political parties you have seen. And Rahul Gandhi states he is advising booster. And you see Aravind Kejriwal ji, aapka, he attends lakhs of rallies with lakhs of people, comes to Delhi, announces night curfew. Even when secretariat, when people were demanding, protesting, he doesn't come out and speak. They're trying to करेक्ट। make vaccines mandatory for writing exam. How foolish this is. Is this science? Yes, Dr. Arvind. Yeah. So the fourth wave has been predicted to start from June 22nd. It's like, probably इतना तो शायद accurate जो हमारे horoscopes भी नहीं होते हैं और शायद astrologers भी इतने accurate नहीं होते हैं, but फिर भी उन्होंने बोला है कि June 22 with the fourth wave will start. It will reach its peak by August 23rd. That means June, July, August, 2 months it will reach the peak.
and in next 2 months it will come down. So 4 months the whole fourth wave will last. Now That is I'll what ask you from, because you are from All India Institute of Medical Sciences, Nagpur, and you are an epidemiologist. Dr. G, can you predict anything like this in science when it comes to health? I Firstly, don't sir, understand. Can you predict like that? Can you say no, this age group is first, going to be affected, this month you are going to get this, and this month it is going to come down? What is this nonsense? Is it science, Dr. Sir? sir, it is. I would firstly say that in India, if there are already 80% people naturally infected, and now almost 70 to 80% of people vaccinated, eligible population, maybe more than that already. If somebody is still predicting a fourth wave like this, I can only understand unless it is manufactured. Unless the wave is manufactured, which can be manufactured, that I can tell you. How to manufacture wave is very easy now. Now it is virtually, if I want to design a fourth wave, I can exactly start on June 22nd. Why? Simple. You start testing more people, you start testing schools, you start testing children, you start testing everybody. Now it is very well known the vaccine immunity does not last for very long. So if the immunity does not last with the vaccine, then they will start getting RT-PCR positive. So if we continue to test RT-PCR positive, you can get the fourth wave. But suppose you do not test people who are asymptomatic, this wave will not happen. This जो ये wave will लहर है, not जो happen. चौथी लहर जो आईआईटी कानपुर की बात करती है, ये स्वास्थ्य के साथ खेल खिलाता है क्या? अब ये आप ये बताइए, अब आप ये बताइए सर, इसके द्वारा जो जनरेट किया गया फियर और पैनिक होगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? कैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो या डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस तरह की ये साजिश रचा रहे हैं लोगों के ऊपर? लोगों को जानकारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य आपका है, शरीर आपका है, और जो निर्णय लेना आप ही है। लेकिन आपको इस तरह की बात कह के डरा के, एक आईआईटी कानपुर वाले जो स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये लोग हमको डरा रहे कि ये दिन आपको आएगा, ये दिन आपको आएगा। और टेस्टिंग भी हम यही पूछ रहे, टेस्टिंग कहां तक सही है? अचानक टेस्टिंग बढ़ जाएगा और डर सर, पैदा किया जाएगा। एक वेव को ये लोग, एक टेस्ट लहर को ये लोग जैसे स्थापित करेंगे। जैसे जिस टेस्टिंग तरह बढ़ाएंगे, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर स्थापित करने की कोशिश की, इसी तरह हमारे डर का फायदा लेके माध्यमों द्वारा, क्योंकि माध्यम को इतना पैसा मिलता है कि वो लोग विज्ञान, वैज्ञान, सच्चाई की बात ही नहीं करते, कानून की बात ही नहीं करते, संविधान की बात ही नहीं करते। तो इस तरह मैं एक आईआईटी कानपुर, मैं इसीलिए डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर से है, उनसे सीधा सवाल कर रहा हूं, साहब जी, ये मुमकिन है क्या स्वास्थ्य के? मेरे हिसाब से सर, फोर्थ वेव इंडिया में अगर हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम जिसको जब तक तकलीफ नहीं होती है तब तक उसको टेस्ट ना करें, और कांटेक्ट ट्रेसिंग जिसकी अब जरूरत नहीं है, अगर वो जबरदस्ती ना करें, एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग ना करें, जबरदस्ती लोगों को टेस्ट ना करें, तो ये फोर्थ वेव मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह से मुमकिन इंडिया में नहीं है। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। वंडरफुल। तो फोर्थ वेव, फोर्थ लहर इंडिया में, अभी सुनिए सर, सुनिए भारत में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपके एसिम्प्टोमेटिक साथ हम कहते हैं, जिसको आपके साथ मैं कोई, एक चीज शेयर करना क्या? चाहता हूँ, बोलिए, एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए सर, गवर्नमेंट बोलिए। गवर्नमेंट का सर इसके ऊपर जो टेक है वो मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए। Government is also keeping a watch. I am not using any of my words. These are all words which have been used by the government. Government is also keeping a watch on mathematical models, including the recent IIT Kanpur study that predicts a fourth wave in July. We value the input. The scientific and mathematical underpinnings will be examined. Decisions being based on just one projection would be unsafe for the society, पॉल साहब, ये नीति आयोग के पॉल साहब बोल रहे हैं। तो तो अभी यही मेरा पॉल टेक है। ये है, अभी मेरा टेक बोलिए ये सर, है बोलिए कि सर। अगर चाहें हम, अगर इस कानपुर स्टडी को हम सही प्रूव करना चाहें, तो हमको सिर्फ एक चीज करनी है, स्टार्ट मोर टेस्टिंग,
increase cases again, find an excuse to implement vaccination for, आप स्कूल में टेस्टिंग, मास टेस्टिंग शुरू करा दीजिए जो अभी तक नहीं हो रही थी। आपको बहाना मिल जाएगा वैक्सीनेशन चिल्ड्रन को लगाने का, कि बोलेंगे देखिए यहाँ पे आउटब्रेक हो गया, यहाँ पे इतने आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गए, फिर से कॉन्टेक्ट, फिर से वही बैडनेस दोबारा से चालू कर सकते हैं, फुली नोइंग कि लोगों को, बच्चों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। अगर ये कॉमन कोल्ड दोबारा हो भी रहा है तो इसमें आरटीपीसीआर की जरूरत है ही नहीं। तो लोग जान जाइए, ये अपने खतरा देखिए, जिस तरह इवन सरकार ने इस तरह की सोच कर रही है, और ये उनको पूछना चाहिए सरकार को, आप प्रश्न करिए, क्वेश्चन द गवर्नमेंट, क्वेश्चन दिस आईआईटी कानपुर पीपल, these IITians should have a technological revolution for the betterment of the society, but not predicting health issues, because you have no knowledge of health. How can you predict? Is it health? क्या तमाशा है ये साइंस है क्या, ये विज्ञान वैज्ञान है क्या? और ये आप किस बुनियाद पे आपने ये चौथी लहर की बात की, आज पूरा बाहर आना चाहिए, और किस तरह सरकार इसको मानने को तुली है, ये सब बाहर आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके ऊपर निशब्द क्यों है? यही है सबके दिमाग में, जब हमारे हक छीने जा रहे हैं इस तरह, हमको डराया जा रहा है इस तरह, और जब किसी को कोई बीमारी की कोई सोच ही नहीं हो, क्योंकि कोई किसी को साइंस या सिम्टम्स, उनके रोग, अगर किस तरह आप रोग निर्धारण करेंगे, उसको कुछ होना चाहिए ना, मेरे को इधर दर्द है, या इसको मेरे को बीमार है, मैं इसको बुखार है, बिना इस तरह के कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं है, जो रोग लोगों में कुछ है ही नहीं, लेकिन आप ये टेस्ट की जो बात करते हैं, ये टेस्ट पूरा मैनिपुलेशन है बोल के सबको, दुनिया को पूरा पता भी चल गया। आज तक आपने वायरस को सेपरेट किया क्या? तो ये टेस्ट किस तरह सही है? और आप टेस्ट करते हैं मनमानी, और टेस्ट में ज्यादा बताते हैं, लोगों को डराते हैं, टीका वैक्सीन को भेजने की प्रबंध करते हैं, और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो अत्यावसर परिस्थिति है उसको फिर वापस लाकर हमारे पैसे से हमारे कोई डैश डैश आप बनाने की साजिश है ये। इसीलिए लोग जान जाओ, आप विज्ञान और वैज्ञान के दौर पर ही चलना चाहिए। स्वास्थ्य है और हमारा जीने का हक है। इट इज आवर लाइफ, और राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ। देयर शुड बी साइंस, देयर शुड बी ट्रूथ in this IIT study, and how government is trying to understand this. Even we have questioned NAG, Honorable Prime Minister, PM's office, ICMR. Till this day, they have not bothered to order an inquiry. Till this day, Supreme Court, High Court have not bothered to do trial on NAG chief statement that many children have died in the age group of 15 and 17 during second wave, and that is the reason why they forced Prime Minister to go on live on December 25th, all of a sudden, and he announced booster and vaccines for children. We have demanded, where is the proof that children have died? Because their own member, he clearly came out and stated, no children of that age group have died. There is no question of any vaccine, because already children have antibodies, 70 to 80% across India, right from Delhi. Serological studies have very clearly stated people have antibodies, children or adults. जो सहज रोग निरोधक शक्ति है लोगों में आ चुका है, बच्चों में और बड़ों में, और हमारे को टीका की जरूरत ही नहीं, ये ने एनतागी की मेंबर कहा। लेकिन आज तक एनतागी के चीफ के ऊपर क्यों प्रधानमंत्री हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या DCGI, उच्चतम न्यायालय या हमारे राष्ट्र के न्यायालय, क्यों ये लोग निशब्द है? या सर अभी मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। लेट्स गो बैक। थर्ड वेव का थ्योरी जब आया था, आपको याद होगा, मैंने भी आपके साथ बात किया था। थर्ड वेव थ्योरी, जब हम ओमाइक्रोन की बात कर रहे थे, जब थर्ड वेव नहीं आया था तब की बात कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने कहा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स गवर्नमेंट मीडिया में, बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा था पीडियाट्रिक वेव आएगा, बच्चों को बहुत इफेक्ट करेगा। बच्चों के हॉस्पिटल्स की तैयारियां शुरू हो गई थी, आपको याद होगा इस बात का। याद है। कोई भी थर्ड वेव में कोई पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई ही नहीं। तो ये जो थर्ड वेव का जो प्रेडिक्शन था पीडियाट्रिक वेव का, आखिर आज उन लोगों पे सवाल क्यों नहीं लोग कर रहे कि आपने लोगों को गलत तरीके से क्यों डराया? अच्छी बात कही है। याद है आपको? लोगों को, बच्चों को थर्ड, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वेव का ये जो नया प्रेडिक्शन एक ही बात सर,
एक ही बात मैं कह के, क्योंकि आप अच्छी बात कही है, थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा ये होगा, इस तरह की डराया गया। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी के तौर पर आज तक क्यों, सुप्रीम कोर्ट हो या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, प्रधानमंत्री की ऑफिस, क्यों आज तक इनके ऊपर आज तक कानूनी के तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? Why there was no action against these people who have created panic, stating that the third wave, many children will be dying? Why there is no inquiry and action against these people either by Prime Minister's office, Indian Council of Medical Research, DCGI, or for that matter Supreme Court or High Courts? Why they are silent? They have to answer, because it is our money through which this system runs. Not only that, we are challenging IIT Kanpur, including Indian Council of Medical Research, Prime Minister's office, and DCGI, including the Supreme Court and High Court. Show us the proof that these people have died because of COVID-19. What is COVID-19? Where is the post-mortem report? Where is the autopsy report? You are paying my money. Where is the autopsy report? And what are the presenting symptoms when they are admitted to the hospital? And not only that, what is the treatment given to them? What is the treatment given to them? Were they vaccinated or not? Even that should come out now. Not only that, I am challenging these people, IIT Kanpur, which is the disease with which Indians are dying daily. I am challenging them. Is it tuberculosis, malaria, dengue, diarrhea, malnutrition, typhoid, accidents? diarrhea. We are challenging you, IIT Kanpur. Which is the disease? Let us speak science. Even Supreme Court, High Court, you have to do trial, taking all these facts into consideration. This everything is on record. How is that courts do trial without going into evidences? All of a sudden, आपको याद होगा मैंने टीबी के ऊपर भी एक दिन बात करी थी कि कैसे टीबी कितना बढ़ेगा आगे चल के और किस तरह से होगा। मैं आज एक टीबी इवैल्यूएशन करके आ रहा हूँ और टीबी में इतना ड्रॉप आया है, डिटेक्शन में इतना ज्यादा कमी आया है कि आगे चल के बहुत दिक्कत देगा अपने को ये टीबी में, और ये सब बीमारियां जो आगे चल के दिसंबर 25 को हमने किया है सर, दिसंबर 25 को हमने किया है। आप टीबी की टेस्टिंग बंद करी, आप दूसरे इलाज के टेस्टिंग आप बंद ही कर दिया। इससे टीबी से कितने लोग मर रहे हैं। और जो अमेरिका से जो एक औरत थोड़े दिन के लिए आई थी, वो टीबी कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अमेरिका में टीबी का नहीं है ना, 1 साल पूरा उनको अभी मॉनिटर कर रहे हैं वहां पर। इंडिया में थोड़े दिन के लिए आई, वो टीबी कॉन्ट्रैक्ट करी। आई एम पुटिंग इट टू प्राइम मिनिस्टर, ICMR, DCGI, Supreme Court and High Court. Why are you silent on tuberculosis ho, malaria ho? IIT Kanpur, why are you not speaking about that? Why only corona? When 99.9% recover on their own without any treatment, is it wrong or right? Come on, let us debate. IIT Kanpur. Yes, sir. अब ये देखिए आपके सामने ये जो है फोर्थ वेव का प्रेडिक्शन है, जो कि आपने देखा है 3 वेव्स को क्लियरली दिखाया गया है नीले रंग से। जो चौथी वेव है वो ब्लैक कलर से दिखाया है, वो अभी तक अनफिल्ड है क्योंकि वहां पे अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं। तो ये अगर आप देखेंगे साइज वाइज, तो ये तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि पहली वेव से डबल, और बहुत 4 महीने का जिसमें गैप दिखाया गया कि स्टार्ट होने में एंड होने में। तो ये वेव अगर हम मान लेते हैं तो इसमें 2 अजम्पशंस है। एक अजम्पशन तो ये हो गया कि ये तीसरे वेव से कम होगा। अब आप सोच लीजिए तीसरी वेव का क्या हाल हुआ, हम लोगों ने देख लिया। तीसरी वेव का क्या हाल हुआ हमने देख लिया, और फोर्थ वेव उससे भी नीचे आने वाली है। और आप सोच लीजिए कि अगर ये और थर्ड और फोर्थ वेव में टेस्टिंग का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, यानी कि अगर यहाँ पे थर्ड वेव में हम एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग कर रहे थे, फोर्थ वेव में नहीं करेंगे, जो कि अगर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं फोर्थ वेव को, तो वापस वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो थर्ड वेव को आपने अपनाई थी, यानी कि वापस टेस्टिंग बढ़ाइए, वापस एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग शुरू करिए, वापस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करिए। यानी अगर वापस ये सारी चीजें करेंगे तो फोर्थ वेव रियलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं, जो कि जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ना टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, ना ही ट्रैकिंग की जरूरत है। देयर इज नो पर्पस सर्व्ड बाय द ट्रैकिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एज ऑफ टुडे। मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी 2 तरह से है। एक तो ये कि आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ये वेव आ सकती है। दूसरा तरीका ये है, जो मुझे लग रहा है जो अडॉप्ट हो सकता है, वो ये है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग की मशीन्स बहुत खरीदी जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर,
वही जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो बहुत लार्ज स्केल पे शुरू किया जाएगा और जून 22 यानी कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते तक कोई ना कोई नया वेरिएंट अनाउंस हो सकता है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब नया वेरिएंट अनाउंस होगा तो फिर से पैनिक मोड में जाएंगे। हम पैनिक मोड में जाते ही टेस्टिंग बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू करेंगे और फोर्थ वेव बन के तैयार हो सकता है। ये मैं आज आपको पहले से बता रहा हूँ। ये आप देखते जाइएगा रेड्डी साहब। हम जब जून में बात करेंगे इसमें दो ही तरीके से पॉसिबल है। एक नए वेरिएंट का अनाउंसमेंट बाई सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून कि नया वेरिएंट डिस्कवर हो गया, दोबारा से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब चालू होगा नौटंकी की, और इसके बाद ये फोर्थ वेव का निर्माण हो सकता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी इन विच फोर्थ वेव कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। Otherwise, there is no possibility whatsoever in India for any further wave, and I would say that there is no need for any further testing, contact tracing, even genomic sequencing is not recommended, because we have seen from the time of first wave till third wave or whatever we call, I don't believe that there was a third wave, but even if we take that wave, the variants over period of time can only become milder and milder. ये हमने उस दिन भी बात करी थी जब हम ओमाइक्रॉन की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, कि जैसे जैसे ये टाइम निकलता है वेरिएंट और माइल्ड होता चला जाता है। इसलिए उसको किसी भी तरह से हमने जबरदस्ती दोबारा से उसको डिस्टर्ब या कह लीजिए डिटेक्ट करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, अनलेस हम चाहें कि हम पैंडेमिक को नहीं खत्म होने देना चाहते, हम लोगों को लाइफ में वापस नहीं रिटर्न होने देना चाहते, हम दोबारा से रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। जब तक ये आपका उद्देश्य ना हो तब तक इस फोर्थ वेव का पॉसिबिलिटी में पूरी तरह से रोल आउट करता हूं आज की तारीख में। एक ही बात कहनी है। आई वांट टू टेल ओनली वन थिंग, हाउ दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर फोर्थ वेव एज पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर अरविंद जी। दे आर बाइंग जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन्स। व्हाई? दे वांट टू क्रिएट अनदर न्यू वेरिएंट। अब सोचिए, और एक नई वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए जीनोम सीक्वेंस मशीन्स खरीदे जा रहे हैं ताकि जून के बाद में, क्योंकि अब इलेक्शन का सीजन है, चुनाव का सीजन है, लाखों रैली करते हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। जानकार हो जाइए। हमारे किसान भाई, फर्स्ट सेकंड वेव जो पीक था, इतने लोग हजारों के पैमाने पर दिल्ली के आसपास ही थे, जहां दिल्ली में ज्यादा इन्फेक्शन बताई गई, कितने किसान लोग मर गए। अब बताइए, वहां का मास्क मैंडेट नहीं, फिजिकल डिस्टेंस नहीं। आई एम चैलेंजिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, व्हाई यू हैव नॉट टेकन इट इनटू कंसिडरेशन? They were not following any physical distance, nor they were masking themselves, nor they were eternally vaccinated there. Our farmers, when they were protesting during first and second wave, you said second wave has killed many people. Why there was no such type of thing in when farmers were agitating? No physical distance, no masks. Supreme Court, why it is keeping quiet? High Court, Supreme Court, why they could not take it as a case study? Then it would have come out. Nothing but these waves have been created by this pharmacy insurance mafia in tandem with political parties and their pumped up media, because to create panic. In that panic, you go to hospital, they were testing drugs on you. We are challenging you. That is why we are asking, demanding Supreme Court also. You are under trial. The trial is going on, but vaccine 1, vaccine 2, booster, children vaccines are being rolled out. Why Supreme Court is not trying to complete the trial? Where is science? You are talking about science. We are giving you science. Let us debate on this. And why you have not taken farmers or anyone into consideration? Not only that, election after election, nothing happens. Nothing happens to any leader. Nothing happens to lakhs of people. But all of a sudden, after elections, suddenly this wave will come. Who is creating this wave? ये लहरें किसने बना रहा है? ये हमारे स्वास्थ्य के साथ किसने ये खिलवाड़ करी और कर रहा है? आप जान जाइए। चौथा लहर भी इसी तरह जीनोम सीक्वेंस मशीन्स खरीदिया जा रहे। एक नए वेरिएंट की और बात करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगा और जो भी इनके बिजनेसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या दूसरा जो बेचना हो, सब कुछ बेच चुके हैं, वो लोग पैसे कमा चुके हैं और आपको घर पे लगाया जाएगा। आप देखिए कीमत किस तरह बढ़ गई आप, और एक युद्ध के नाम पे हमारे को और घर पे रख के स्वास्थ्य के नाम पे डराया जाएगा। एक स्वास्थ्य को कानूनी का मामला बना के हमारे को डराया जा रहा। तो जानकार हो जाइए। यस सर, प्लीज। अब आप देखिए किस तरह से नैरेटिव क्रिएट किया जाता है।
सबसे पहला नैरेटिव आ गया कि फोर्थ वेव आएगा। एक स्टडी आ गई है आईआईटी कानपुर की, सबसे पहले इस तरह से आपको जनता को आगाह किया जाता है, देखो फोर्थ वेव आने वाला है, यानी कि आप तैयार रहिए। अभी आपको कोई भी फ्रीडम की बात नहीं करनी चाहिए कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हम अपना काम पे वापस लौट जाएंगे, हम अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन भी जीने लग जाएंगे। इसकी गलतफहमी मत पालिए। आप अभी भी फोर्थ वेव का इंतजार करना शुरू करिए, जबकि थर्ड वेव खत्म नहीं हुई है। अब जब थर्ड वेव खत्म हो गई है तो क्या है, अब हॉस्पिटल में तो लोग पहुंचे नहीं। अब गवर्नमेंट को समझ नहीं आया कि इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने थर्ड वेव का डर दिखाया, आपको याद होगा ओमाइक्रोन का डर दिखाया गया था, थर्ड वेव ओमाइक्रोन वेव थी। जब मैंने, आपको याद होगा दिसंबर के महीने में हम लोगों ने, नवंबर में शायद शो किया था या दिसंबर, मुझे याद नहीं आ दिसंबर रहा 16, एग्जैक्ट दिसंबर है। 16, दिसंबर दिसंबर 16, 16, दिसंबर। दिसंबर 16 को मैंने आपको बोला था कि ओमाइक्रोन विल नॉट कॉज एनीथिंग इन इंडिया, दैट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स वर द वर्ड्स, एंड दिस विल प्रूव टू द एंड ऑफ पेंडेमिक। एंड मेरे हिसाब से दैट वुड रियली मेक द डिजीज कंप्लीटली एंडेमिक, एंड आई वाज ऑलरेडी एंडेमिक बाय दैट टाइम एक्चुअली। तो वही हुआ, लेकिन थर्ड वेव उन्होंने मैन्युफैक्चर की। मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए तो उसका बहाना ये ढूंढा कि हमने जो वैक्सीनेशन कर दिया इसके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए। अब आप ये बात कैसे कह सकते हैं जब जनता में ऑलरेडी नेचुरल एंटीबॉडी 60 से 80% लोगों में ऑलरेडी हो, और ये एस्टेब्लिश्ड हो कि नेचुरल इम्यूनिटी 10 गुना वैक्सीन इम्यूनिटी से बेहतर होती है, तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसमें आपने वैक्सीन लगा के कुछ नया तो हासिल नहीं कर लिया। तो अगर ये वेव में एडमिशंस नहीं हुए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसका श्रेय आप वैक्सीन को देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है। बट एक्चुअली देखा जाए उसका जो पूरा क्रेडिट और श्रेय है वो हमारी सेकेंड वेव में जो लोगों को इन्फेक्शन हुए उसको जाता है। लेकिन अब वही है कि अब इसको कौन कहेगा, कौन समझाएगा। आपने अगर एक लाइन ले ली है तो आपने ले ली है। अभी देखिए नहीं, कैसे गलत। नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है। आईआईटी कानपुर ने फोर्थ वेव का एक आपको छोड़ दिया कि फोर्थ वेव ऐसे होगा, 22 जून को शुरू होगा और 23 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, 4 महीने चलेगा, 2 महीने में चढ़ेगा, 2 महीने में नीचे आएगा। अब आप क्या करेंगे, एक आपने डर का माहौल तो पैदा कर दिया, फोर्थ वेव की तैयारी करो। अब क्या करो कि लोगों से कहलवाओ कि डरना भी नहीं है। अब वो डराना भी चाहते हैं, डराना भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्टीमेटली ये भी फेल हो जाएगी फोर्थ वेव। फोर्थ वेव इसलिए फेल हो जाएगी क्योंकि फिर लोग एडमिट नहीं होंगे। तो क्या करो कि लोगों से कहलवाई, जो सो कॉल्ड आप बोलते हैं ना कि बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग हैं, बड़े बड़े अस्पताल चलाते हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलाते हैं। अब देखिए एक जो मैं नीचे पढ़ रहा हूँ उनका जो कह लीजिए जो स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए क्या लिखा है। दो द मेजॉरिटी ऑफ अर्बन इंडिया इज वैक्सीनेटेड। शुरुआत कहां से होती है, इसका पता लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है कहीं से डिक्टेटेड है, ये उनका खुद का ओपिनियन नहीं लगता है। Though the majority of urban India is vaccinated, the effect of vaccine lasts for 3 to 6 months. इसमें कई चीजें आ रही हैं, आपको समझने वाली है। पहली बात, एक तरफ तो वो श्रेय दे रहे हैं कि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो गया, दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि वैक्सीन बहुत अच्छा काम नहीं करती है। थर्ड वेव एंडेड इन फरवरी, therefore fourth wave is anticipated in the month of June, ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। However, the good part is that it is likely that the fourth wave will be very mild. तो एक तरफ आपने डराना शुरू किया, दूसरी तरफ बोलती है बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं। पर अब ये जो कैलकुलेटेड डर है उसके पीछे कहानी है, कैलकुलेटेड डर के पीछे कहानी ये है कि इतना डरा दो कि कम से कम वो वैक्सीन के लिए तैयार हो जाए। आप समझ रहे हैं, कई लोगों में वैक्सीन ना लेने की, बहुत लोगों में ये देखा गया कि अब वो तैयार नहीं हो रहे हैं वैक्सीन को आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब कैसे उनको वैक्सीन की तरफ धकेला जाए, ये वही जो है थ्योरी है। अब आगे वो क्या बोलते हैं, दो वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द वायरस इज नोन फॉर एक्सट्रीम म्यूटाजेनिक पोटेंशियल, so if the virus mutates to a dangerous form it can be very difficult to handle. Now this statement is completely unscientific for simple reason that in the course of this pandemic
starting from the alpha, beta, gamma, delta, and so many strains. With each passing new strain, the the virus lethality, virulence has only come down. यानी कि वो और कम से कम कमजोर होता चला गया वायरस, और उसमें मारने की क्षमता लोगों की नहीं रही, और इसके दौरान उससे भी लोग भी पहले भी ऑलरेडी एक्सपोज हो गए हैं, तो वो प्रोटेक्ट भी हो गए, और वो वायरस भी बहुत ही माइल्ड हो गए, जैसे ओमाइक्रोन हुआ था, आपने हम लोगों ने बात करी थी उसके ऊपर। तो ये जो एक मिक्स्ड मैसेजिंग है, ये पूरे तरह से डिजाइन। अभी आप एक और देखिए सर जी, ये यहाँ भी पर एक एक छोटा सा ये है, बोलिए। इसके पहले का सर, इसके पहले का एस्कॉट हॉस्पिटल हो, उनसे हम यही उनको हम आमंत्रित करेंगे, रविशेखर झा साहब एस्कॉट हॉस्पिटल भी आप आइए, वेव क्या है, कितने लोग कोरोना से मर गए, आप किस तरह निर्धारण किया, हाउ डिड you come to a conclusion people have died because of corona, Mr. Dr. Ravishekhar Jha, and we are challenging you, what does these vaccines contain, Covishield हो या कोवैक्सीन, फाइजर की तो ऐसी की तैसी, हमारा नहीं, वहां दुनिया पूरा क्या हो रहा सबको पता है, डॉक्टर रविशेखर झा, what people are, how they are protesting, everything is coming out, दूध का दूध पानी का पानी. Dr. Ravishekhar Jha, you are talking about vaccines, and the other expert which you are going to mention, we are challenging them, what does these vaccines contain, everything you first make it clear to the people, what does this vaccine contain, ये टीका हो में क्या है, पहले ये जानकारी लोगों को दीजिए, और अगर ये सही काम करता तो अत्यवसर परिस्थिति की जरूरत क्या है, अगर ये सही काम करता तो नष्ट परिहार क्यों नहीं दिया जा रहा इनको, if it is working, why still you are using it under emergency use authorization, why still emergency, I am challenging you, and why there is no liability and compensation if these vaccines are working, because government is investing my money, I am demanding, I have every right, Supreme Court, High Court should come to my rescue. And how are you trying to create panic, asking people to go on virtual mode? What is the science, what are the symptoms you have, Supreme Court and High Court, reveal it to public, why are you scared, why this fear, you have to share everything with the public, because court rules, court gives judgments based on evidences. When you take a stand, we expect Supreme Court and Honorable High Courts should come to the rescue of commoner by providing all those evidences. You give us evidences, we are giving you so many evidences in every show, we are asking you, come on, take this link, let us debate, because you discuss, debate, and then you decide. That is the beauty of democracy. Yes sir, please go ahead. So this was one opinion. Second opinion I can share with you again from one of the group of hospitals, Max Hospital, Gurgaon. Now this gentleman, Dr. Shukla Saab, says that fourth wave is expected to start in June and end in October. You know, the same Kanpur study, and it is expected to be a milder version of the third wave. If it is expected to be a milder version of the third wave, why do we need to talk about it? If nothing happened in third wave, and if the fourth wave is likely to be milder, why do you have to tell people? That Not means, only that, these nice sir, these pulmonologists, both of them, his internal medicine, why they are not talking about tuberculosis, dengue, exactly. malaria, I am challenging them, which is the disease killing Indians in India, you have to answer. Now just see, Is it corona? We are challenging you. Is it corona? Prove it. Otherwise, you have to. Just look at the two opinions. Look at this opinion. What is he saying? Though we must keep in mind that the virus is known for extreme mutagenic potential, so if the virus mutates to a dangerous form, it can be very difficult to handle. One opinion. Now next opinion, just look at it. It is a milder disease because that is how the viruses behave. With every wave, they get attenuated, and that is how pandemics fade away. Now, completely contradictory statements from two senior doctors. Though I would agree with this particular one, Dr. Shukla, what he's saying is actually the truth and more close to the truth. Wonderful. We Now salute him. coming to another stalwart whom we are very familiar with,
He is still more optimistic that declining COVID-19 cases suggest on the tail of third wave, we will be reaching endemic stage. So as of this is 25th February, I think this must be before the IIT Kanpur study came. You will find that after some days this statement might change. He kept on changing. AIIMS director Guleria, he himself said how CT scan is more dangerous. So now And then he will went again on changing. possibly this might have, he might not have noticed the fourth wave theory. So now he might again change his statement. You will come to know slowly. Now I will come to now the main crux of today's talk, that how this fear factory of COVID-19, sorry, this the spelling mistake here, it is only one written here, but it should have been 19, COVID-19. Oh, it's okay, sir. So fear factory, I would like to just discuss with you how this entire process is carried out. It's a very systematic design. It's not random. It's not unorganized. It is properly coordinated, properly organized, well orchestrated fear factory. That means it is operating in a very systematic manner. Now, first step in this particular, oh, okay, this particular one is for the first step. Sorry, this is the first step. So, first step, how do you create a group norm of fear through mass media? You put out an article or a news, and that should catch the headlines. Now, this headline can be something like this: can Omicron variant 2 cause another COVID surge in India? Just leave a question, blank question. It may be most absurd question it can be, but just ask this absurd question and then let people start thinking. Can Omicron cause another COVID surge in India? Expert explains how lethal this subvariant is. नो ये हेडलाइन पढ़ के अब आदमी क्या सोचेगा, पता नहीं अभी क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, फियर पैदा हो गया ना सब ग्रुप में। एक और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो पॉइंटेड आउट that in case there is another Omicron surge, then we'll see more cases of this variant. इस तरह का हेडलाइन 3-4 जगह से आएगा, नेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसी से आएगा, और इससे एक माहौल डर का पैदा होता है इन द माइंड्स ऑफ पीपल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप इज, ये जो माहौल आपने पैदा किया उसको थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन का तड़का लगा करके आप उसे पेश करेंगे. कोई बड़ा आदमी कह देगा, कोई बड़ा अथॉरिटी कह देगा कि भाई ये जो है इस तरह से हो सकता है. अब आपको मैं याद दिलाता हूँ चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने क्या बोला था. ओमाइक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज अ साइलेंट किलर. ह्यूज स्टेटमेंट एंड एब्सोल्युटली fallacious statement. And it is coming from the Chief Justice of India. Sorry, आप कुछ बोल रहे थे. नहीं, go ahead sir, after you complete. तो अब ये स्टेटमेंट अगर ऐसे पब्लिक डोमेन में आ जाता है, चाहे इनसे हो, चाहे कोई एनटागी का चेयरमैन हो, चाहे कोविड टास्क फोर्स का चेयरमैन हो, या कोई कहीं के डायरेक्टर हो किसी एम्स के या किसी जगह के, अगर उधर से आ जाता है तो उनको सो कॉल्ड कोविड एक्सपर्ट माना जाता है. अगर वो कोविड एक्सपर्ट वो बात को एंडोर्स कर देते हैं तो वो कह लीजिए पब्लिक माइंड में सेट हो जाती है. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2. Yeah, that's true. That too, let us now, we see we have every right, because he is our Chief Justice. We can demand. Why should I request? I am a citizen. That is, I'm the constitutional authority myself. I will demand from him, Honorable Chief Justice NV Ramana ji. You said COVID-19 is a silent killer, Omicron variant, whereas where it started, it has already faded and it has given them natural immunity in South Africa. What made you to come out with this statement, Honorable Chief Justice of India? Kindly educate us. We request you to either appear in our channel or you share the news so that we will play it to the public. Because a Chief Justice speaking that it is a silent killer, and also we have been demanding, Honorable Chief Justice NV Ramana ji, how did you come to a conclusion that the deaths are because of Corona or COVID-19? Did you do any autopsy test? Any postmortem report courts have? What are the symptoms presented when they were admitted into the hospital, and what are the drugs given? And
autopsy or postmortem report. This is science. Honorable Chief Justice of India, N.V. Ramnaji, kindly give us all those details. And you, on your latest statement, silent killer, and it takes a long time to recover from this strain. This also you have to share the information so that we will go live. We will educate the people with clear evidences. Using the word silent killer so casually is dangerous. You know, a common citizen will think, you know, he can interpret in the way he understands. So he can, I mean, you can understand the amount of fear in his mind. Silent killer, मुझे पता भी नहीं लगेगा मैं मर जाऊंगा. That is the kind of thing that common man will understand. We have to challenge this statement. Now we will ask Honorable Chief Justice, let them constitute a constitutional bench in Supreme Court. Let them come clear which is the disease killing Indians, even whether it was first wave, second wave, or third wave, or fourth wave. Let us debate with evidences. Is it tuberculosis, malaria, dengue, diarrhea, malnutrition, accidents, viral encephalitis? Honorable Chief Justice Ramnaji, constitute a bench. Let us discuss with evidences. Even WHO, it escapes from that Nuremberg court. They said so many 42% cases of TB went undetected. I have shown you a lady traveling to India got infected. She is in her monitor in US. Is it not true? So many children or any youngsters are getting killed because of malaria. WHO again stated to escape from Nuremberg court. Is it not true? Why is Supreme Court silent on all these things? The same WHO to escape from the wrath tomorrow. What is happening from Canada, US, everywhere it will happen. Yes, sir. Please go ahead. So this is very, very important that, you know, this is the second step where you bring an expert and ask him to give such a kind of opinion. Two opinions I've already shown to you of Max and Fortis hospitals. That kind of thing you can buttress. This is the second step. Now comes this third step. In the third step of this fear factory, you manufacture uncertainty and insist on this uncertainty as long as possible. So at least till the time the fourth wave starts, that is somewhere around June, third week, now this uncertainty has been established. Now अब क्या होगा, जून में आएगा fourth wave. Now people will not live these 3 months. They will just keep hoping for the worst. That fourth wave आएगा, पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा. You know, that kind of uncertainty in the minds कि आएगा, कितना खतरनाक वेरिएंट होगा हमें नहीं पता है. इस तरह का जो एक अनसर्टेनिटी इज द, you know, what drives fear of unknown, when you don't know something. So unknown is the biggest fear driver. So this you have already created by this unknown and uncertain. Understood? Like this fourth wave in India, will it be dangerous? ये आपने अनसर्टेनिटी कर दी. डेंजरस होगा नहीं होगा कुछ नहीं, मैंने बोला वो बोलेंगे, हमने तो नहीं बोला था कि डेंजरस था, पर आपने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी. I will just give you some examples here. According to, you know, this vaccine effectiveness and mortality prevention of first dose is 98.9% and second dose is 99.3%. Now Dr. V.K. Paul saying we are in a vaccine enabled low corona phase. This particular statement is not supported by any hypothesis, any data. I am very sure that challenge, sir. You challenge them, Mr. Balram Bhargava and Dr. V.K. Paul. Where is the data? समाचार कहाँ है? क्यों आप डरा रहे लोगों को? Now I'll tell you, sir. Let us take first. Mortality prevention of first dose is 98.9%. Second dose is 99.3%. The survival from natural infection is greater than both these things. 99.997%. So which is better? You tell me. Wonderful. They should keep their faces somewhere. He's not a science man. सहज रोग निरोधक शक्ति तो 99.9% से ज्यादा है, Mr. Bhargava. Yes, sir. Please बोलिए. So now in the second part, we are in a vaccine-enabled low corona phase. How can you say it is a vaccine-enabled when already 80% of the people had already got natural infection as established by the Sero survey?
And it is beyond any doubt by so many studies that natural infection is 13 times or 20 times better than the vaccine immunity. So how can you make this statement? Now, next Wonderful. thing, what is surprising is surveillance should remain intact. For what reason? So that you can manufacture the next wave. They And should we not should not forget. stop They should not. the These progress. both officials should not forget what is happening in Canada and US. How courts have become very active. Here, if courts are not acting, they will be forced by the public mandate. Just imagine 130 crore people. If they start coming onto the roads, what will happen to these people who have been very unscientific, just creating panic and fear, killing science, killing truth? Yes, sir. Sir, this is a statement by a very, very sensible general citizen of India or anywhere. You know, I'm just saying, sharing with everyone. By declining the vaccine, you know, a person who has not taken vaccine, he says that I'm 100% safe from adverse reactions of the vaccine. And he also says that I am 99.99% safe from COVID. That is a natural survival. So I would say there's those are pretty safe odds. I'm happy with that. Why do I need vaccine? Now coming to the stage 4 of fear factory, how the stage 4 is reached. Bury both the good news and those who do not agree with the narrative. यानी कि फोर्थ वेव जो है उसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी आदमी अगर कह रहा है तो ऐसी न्यूज को दबा दो, और अगर ये कोई कह रहा है कि फोर्थ वेव होगा ही नहीं, वो भी दबा दो। हाईलाइट क्या करना है आपको? बैड न्यूज। बैड न्यूज एग्जाम्पल, 92% of India's COVID-19 deaths in 2022 were of unvaccinated people. This is a bad news. So किसी को highlight करो, चैलेंज किया है हमने, आज तक बात नहीं की हो। प्रूफ आप डाटा highlight करो। बताइए। डाटा So बताइए मिस्टर, क्या I'm just समझ coming रखा to आप? the, वास्तव ये क्या है ये? how the steps are being meticulously followed. This is the stage 4 or the step 4 of fear factory. Now यस, coming to the next step, that is the step 5. Omit the relevant context. यानी कि इंडिया में अगर 1200 लोग टीबी से मर रहे हैं, अगर 500 लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहे हैं, या 300 लोग 400 लोग सुसाइड से मर रहे हैं, वो आप बिल्कुल मीडिया में मत आने दीजिए। मीडिया में क्या आना चाहिए कि आज 66 people died in India because of COVID. That should be the narrative. Now 27,000 people die in India. If 66 people die of COVID, does it need any space on the media anywhere? Anywhere? So, you know, omit the relevant context. जो आपको जो बताना है वो बताइए, और जो एक्चुअली है सही कंटेक्स्ट है वो मत बताइए कि भैया दिन में आप एक दिन में टीबी से 1200 लोग मर जाते हैं, ये कोई मीडिया नहीं बताएगा। 400 लोग आप आरटीए से मर जाते हैं रोज के रोज, वो नहीं बताएगा। 66 पीपल डाई फ्रॉम कोविड, ये 250 भी नहीं है। आज का डेटा सर 66 है इंडिया का, और वो भी 66, पता नहीं 66 में कोविड डेथ है या कुछ और है उसमें। जैसे कि आपको पता होगा सीडीसी ने ऑलरेडी मान लिया है कि 96% डेथ्स वर नॉट प्योर कोविड, दे वर फ्रॉम सो मेनी अदर डिजीजेस। अब आगे स्टेज 6 फियर फैक्ट्री का जो स्टेप 6 है वो क्या? स्टेप 6 है रोज के रोज केस काउंट टिकर पे चलाते रहिए, जिससे कि लोग जो है भयभीत रहें। टोटल कंफर्म्ड केसेस 4,29,62,953। How does it make any sense today? Unless you want to scare people, why should you put out this data? Only data that should come out is आज 5,476 लोग पॉजिटिव आए आरटीपीसीआर। That should be the data, और डेटा में देना चाहिए कि इस 5,476 में 100 लोगों को भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, ये डेटा में आना चाहिए। वो तो नहीं देते आप देंगे
4,29,62,953 दूसरे बीमारियों का तो कोई अता पता ही नहीं। उसका तो बात ही नहीं है सर। फेटल केसेस का दीजिए, 5,15,036 लोग मर चुके। यानी कि आप वो हाईलाइट करिए, केस काउंट जो है ना सर, ये बहुत बड़ा एक इनका वो एक हथियार है कोविड-6 का। ये 6 स्टेप है सर, 6ठा स्टेप है। अब ये जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए वो क्यों जरूरी है? इससे नैरेटिव तैयार होता है। इस नैरेटिव के बगैर या इस फियर नैरेटिव के बगैर पैंडेमिक का कोई वजूद ही नहीं है। पैंडेमिक एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ये फियर आपका नहीं होता। एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन को आपने एक पैंडेमिक में कन्वर्ट कर दिया। एक आरटीपीसीआर पॉजिटिविटी को आपने केस बना दिया। जो कि केस क्या होता है? जिसको कोई सिम्टम होता है तब आप टेस्ट करते हैं। यहाँ बिना सिम्टम वाले के नाक में आपने घुसेड़ करके आरटीपीसीआर पॉजिटिविटी कर दिया। ये सब इसलिए किया जाता है फियर। इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप पॉपुलेशन को। जब बोलेंगे तब मास्क लगा सकेगा, जब बोलेंगे तब जहां बोलेगा वहां खड़ा हो जाएगा। घर के अंदर बंद होना, घर के अंदर बंद हो जाएगा। दुकान बंद करना, दुकान बंद कर देगा। आपको फाइन करना, फाइन कर देगा। आपका पूरी तरह से कंट्रोल जो है, जिस दिन चाहेंगे आप मैन्युफैक्चर कर लेंगे आप वेव्स को। तो ये जो कंट्रोल जो है पूरा पैंडेमिक का, ये मेन टूल है सर फियर। आप समझ गए फियर का क्यों यूज है इस पैंडेमिक के अंदर। अब मेरी अपील जो है, मेरी अपील गवर्नमेंट से भी है और लोगों से भी है और डॉक्टर साहब लोगों से भी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर हमने 170 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगा चुके हैं, 80% जनता या उससे कहीं ज्यादा, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 100% जनता एक्सपोज कहीं ना कहीं उस वायरस से हो चुकी है। अब हमें किसी भी तरह के कोई भी मैंडेट एक भी दिन कंटिन्यू करना बनता नहीं है। नंबर 1, कोई भी टेस्ट ट्रैक ट्रीट पॉलिसी को अब डस्टबिन में डालने का बहुत पहले वक्त आ गया था, पर अब एक भी दिन जारी रखना बिल्कुल गलत होगा। मॉडलिंग जो इस तरह का किया जाता है 4th वेव और 5th वेव का, ये भी बंद होना चाहिए क्योंकि ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट एनडीएमए एक्ट का एक भी दिन और जारी रखना बिल्कुल बेईमानी है, अनसाइंटिफिक है, उसका कोई भी स्टैंड नहीं है। कोई भी और टेस्टिंग कंटिन्यू करने का भी कोई वजूद अब जरूरत नहीं है। ये पैंडेमिक अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर और हमें अब इसको किसी भी तरह से टेस्ट को जिंदा रखना इस बीमारी के लिए बनता नहीं। और आखिर में आप सब लोगों को मैं बहुत, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू एवरीवन, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इज बिग बिग कैपिटल नो नो नेवर नेवर एवर। With this I close my talk, sir. Wonderful, sir. Wonderful. Once again, the best. I think this should open up. This should be a very legal document for NV Ramana ji. You are saying silent killer. We say it is not killing. COVID is not killing. There are many other diseases. We are challenging you and we are sending you this link to you. Tomorrow I am going to mail to Honorable President, to everyone with this link so that the eyes will open. Indian Council of Medical Research or DCGI, all health departments in every state, and the health ministry, including Prime Minister's office, you need to answer people now. How long you can scare people? कितने दिन आप लोगों को डराएंगे? आज देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज शो में पूरे आधार के साथ अरविंद कुशवाहा जी ने सब कुछ आज पोल खोल दी है और इससे ज्यादा मैं सोचता हूं कोई चैनल में हो या किस तरह डर को अवैज्ञानिक तौर पर बिना आधार के जिस तरह कानून के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ, क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है, जिस तरह डर पैदा किया जाता है, आज सही आधार के साथ हमने बताया। हम इन सभी लोगों को चैलेंज करती है, भैया कोरोना कोविड किस तरह आप मान लिए? वेयर इज द पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट? और जब लोग हॉस्पिटल जाते हैं डर के मारे,
तो उनको क्या सिम्टम्स थे और क्या इलाज, ट्रीटमेंट यू हैव गिवन देम, क्या इलाज किया आप, कौन से ड्रग्स आपने इस्तेमाल किया, और क्यों उनको वेंटिलेटर या इस तरह की सुविधा दी गई, ऑक्सीजन क्या जरूरत थी। और हम डॉक्टर्स के जरिए यही चाहते कि हर कोई स्वस्थ रहे। अगर जो अनफॉर्चुनेटली जो मर भी जाता है, आप किस तरह कोई टेस्ट किया है, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट है आपके पास, किस तरह आप इनको कोविड कहला दिया, और टेस्टिंग की आरटीपीसीआर टेस्टिंग के नाम्स क्या है, पहले दिन क्या था और बीच में क्या था, आज क्यों चेंज हो रहा है ये। और साथ में अगर मेरे को कोई सिम्टम ही नहीं है, when I don't have any symptoms, why the hell you are testing me? How can you try to prevent or you try to treat when you have signs and symptoms? Is this not science? So doctors fraternity, including Indian Medical Association and everyone, you should open your eyes now. You are under oath, do no harm. किसी तरह किसी को कोई क्षति ना पहुंचा, यही हमारी ओथ है। आप इसके खिलाफ जा रहे हो क्या? आप जो डिक्टेट करिए फार्मेसी हो, इंश्योरेंस या पॉलिटिकल पार्टी या उनके स्पॉन्सर्ड मीडिया, आप इसी को पढ़ना चाहते हैं? आप आत्मद्रोह नहीं करना चाहिए। यू शुड बी क्लियर टू योर ओन कॉन्साइंस, डोंट cheat your conscience, don't impose. So we have exposed how these wave theories of fear have been and how they are going to manufacture another fourth wave, third wave. By God's grace we could overcome it because we proved everything. Even till today the Honorable Prime Minister's office, Supreme Court and High Courts, they are not initiated any trial on NAG's statement that they have 15 to 17 years deaths were there. And we have been demanding, what does vaccines contain? Every minute detail, what this, whether it is Covishield, Covaxin, what do they contain in them? Is it not science that natural immunity is much superior and stronger? Israel studies to all third world countries and including India have proved. Is it not true? सहज रोग निरोधक शक्ति टीका जो शक्ति देती है उससे ज्यादा मजबूत तंदुरुस्त है या नहीं, आधार के साथ बता चुके हैं पूरा दुनिया में। क्यों हमारे उच्चतम न्यायालय हो या ICMR, DCGI, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस क्यों चुप है? और ये मीडिया में रोज का रोज तमाशा, ये डर क्यों फैला दिया जा रहा है? ये डर के बहाने बच्चों की परवरिश खत्म हो गई, बच्चों की जो विद्या व्यवस्था है उसको आपने खत्म कर दिया है, और लोगों की जो जीने का हक ने आपने छीना है। सिवा डर और बच्चों की विद्या खत्म, लूटम लूटी। अब कीमतें कितनी बड़ी है, और इस डर के मारे लोग जाके बेचैन होकर ये बेचते हैं और वो खरीदते हैं और ये खरीदते हैं ज्यादा दाम लेकर। अब डरा रहे हैं। Because of this fear psychosis which you have created, you have killed the spirit of evolution of children. You killed the spirit of education of children of entire country and entire world. You have taken away lives and you have created a big dent in the livelihoods. Lives and livelihoods have been affected. And not only that, because of this fear, people are selling to make their living. And the other neo-rich, you have seen pandemic, how Adanis, Ambanis have become neo-rich in India. When people are suffering for want of income, these people are having income. Because in pandemic, lockdowns, everything online, they went on buying Microsoft, this Google fellow, and then Microsoft or Bill Gates, their equipment were sold. And Adani, Ambani, and Ambani, through his Jio, what was the rate in 2020 per month? What is it giving it now? Because of pandemic, there is no money. How is they are increasing the rates? Stupid things happening in India. How can people be taken for it? This is what is happening. They are looting, they are becoming neo-rich. Lockdown, and they are doing their businesses. On the other side, you are losing income. You are losing your natural immunity when you go and don't walk in the sun. And when children don't go to school, when children are forced to wear masks, you are becoming diseased. आप रोगग्रस्त हो जा रहे हैं, आप घर बैठे बैठे। यही डर वो लोग आपको डर के साथ लोग घर में बिठाओ ताकि आपके स्वास्थ्य खत्म हो जाए। डर के मारे आप कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल जाए, जो भी बाकी बचा से पैसे आप लोग लुट जाए, आपके कीमती लैंड जो है आप बेचना शुरू करेंगे ताकि ये लोग खरीदेंगे, और डरा के धमका के आपको घर पे लैपटॉप्स हो, फोन्स के द्वारा वो लोग बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। और जियो जैसा क्या लूटम लूटी है,
और यही दौरान में they are killing public sector units, they are looting, they have taken away everything. This is what is happening. Thank you, sir. Before we say bye, I am just going to show one small thing for people to realize what is Bill Gates, what is his background of study. See, he is coming out and he says when COVID runs rampant, masks are like pants, you have to wear them. What is this man studied here? पैंट्स और मास्क से कोई मतलब है? आप सोचिए दुनियादारों, किस तरह ये आज हैदराबाद में ऐलान करते हैं हमारे मंत्री जी, माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि इसको पता चल गया क्या हो रहा है उनको। दिसंबर वहां पर अमेरिका में, कनाडा में इनकी पोल खुल गई और हम जैसे लोगों को पैसे की आश देके फिर यहाँ एक नया सेटअप, और हमारी भूमि है, फुगट को तो ये कर रहा है ये, और ये कहता है कि मास्क आर लाइक पैंट्स, जो यहाँ पहन रहे नीचे। अब क्या बोलना, क्या पढ़ा है ये? इसको हमने सही तरीके से जवाब दिया। अरे भैया, हमारे लोगों ने सही तरीके से जवाब दिया, लेकिन इनको भी हमने एक जवाब दिया था, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हमारे भाईजान को ने हमने जवाब दिया है। हमने जवाब दिया है इनको। Let Mr. Bill Gates prove that pandemic is deadly first with scientific evidences, then masks too. Comparing pants to mask is idiocy at its best. Nostrils, nose, ये जो हम कहते हैं, जो है, they are to breathe oxygen from the air to survive. हम जीने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और इसको और उस पैंट और शर्ट किस तरह क्यों पहनते हैं? आप सोचिए, हमारे जिस्म को ये करने के लिए। लेकिन जो नॉस्ट्रिल्स है, नोज है, नाक है, उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। लेकिन पैंट और शर्ट से हम केवल जिस्म को कवर करते हैं। जिस्म को कब कवर करते हैं? जब आप जीवित हो। अब देखिए, पैंट्स को और मास्क को इन्हें कंपेयर करें, अब इसको क्या बोलेंगे आप? एंड ओनली देन अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी विल फंक्शन। पैंट, और हमने ये भी पूछा, पैंट और शर्ट, मीडिया शुडंट केयर और कैरी सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये हेडलाइन बन गया, जिस तरह हमारे अरविंद कुशवाहा जी ने बताया। और लेट हिम आंसर, हम ये भी पूछा कि आप ये स्टेटमेंट साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, सच क्या है? और हम ये भी जानकारी चाहते हैं कि वैक्सीन, जो वाइजर की वैक्सीन जो डाटा वहां पर आया और सेनेट ने वहां पर एक खत्म ही कर दिया मैंडेट्स का, और ट्रकर्स का ऑनगोइंग वहां पर जो चल रहा, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते बिल गेट्स जी? और आपने इसके पहले जो टीकाओं के ऊपर जो आपने किया है यहाँ पर, उसके ऊपर आप लोग जान जाएंगे तुरंत। तो ये ने मैं बताया उनको। अब है ना अरविंद जी? जी जी, क्या बोलते हैं आप इसके ऊपर, ऐसे स्टेटमेंट? सर एक्चुअली it is very unfortunate that a person like him is uttering sheer nonsense on topics which are of public health, and he has absolutely neither no knowledge, neither any authority, neither any right to comment on public health, but he is doing it simply because he has dollars to fund so many institutions. He has invested in vaccines. लोग जान जाइए, बिल गेट्स ने टीकाओं में इन्वेस्ट किया, और उसके माइक्रोसॉफ्ट संस्था क्या करती है? आप ऑनलाइन में, यहाँ पर एक बिजनेस है और यहाँ पर एक बिजनेस है, और लोगों को डरा के बिजनेस का ये आप सोचिए। और इसीलिए हमारे आम इंडियंस ने बिल गेट्स को एक अच्छी जवाब दिया है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इससे हम एंड करेंगे। बिल गेट्स को एक अच्छी और एक बार प्ले करता हूं, क्योंकि अभी आई एम प्लेइंग दिस। हमारे बिल गेट्स आपको आम आदमी
हमारे भारत के आम आदमी ने क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी ने बिल गेट्स को एक सही जवाब दिया जो आज मास्क की बात करी है। I only hope this will reach Mr. Bill Gates. We are not against anyone. We invite him also onto the show because in this show we discuss and debate only science, truth, so that the freedom of the people is eternal. हम बिल गेट जैसे सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं क्योंकि ये डॉक्टर टीएसपीआर चैनल शो या डॉक्टर टीएसपीआर लाइव शो इतने अतिथि महागण के साथ हम जो चर्चा करते हैं वो बुनियादी तौर पर कानूनी है, संविधानिक दौर पर आधार के साथ। अगर आप सोचते हम कोई गलत कर रहे हैं, आप हमको जानकारी दीजिए, हमको सही समाचार हमको दीजिए ताकि हम उसको भी हम ये करेंगे। If you feel that we are doing something wrong, you have every right to share the correct information because Dr. TSPR channels with wonderful guests like Dr. Aravind Kushwaha and all, we believe doing these live shows as per rule of law, constitution, invoking evidential act. They take so much of pain. Even today's is a masterpiece, I should say. And I only hope when Supreme Court commented, what is science? This is science, Supreme Court. This is science, High Court. This is science, Honorable Chief Justice of India, which we are trying to do. And we request all the people, we are trying to give you information. We are not trying to create fear. Trying to understand the other media, what they are doing, the other circles, what they are doing, how they are trying to create fear. But we are here in this on this platform through Dr. TSPR channels with wonderful guests. We are giving you proper information as per rule of law, constitution, invoking evidential act. So that this information, if you have, correct information, if you have, that fear will go away. So that you can become decisive and you can decide on your own because you are a constitutional authority yourself. The taxes paid by you will make central and state governments run, right from Honorable Prime Minister to Honorable Chief Minister. They're all our public servants. So you decide what is health, what treatment you want, what prevention you want. We are here to provide you all information. We release the flyer much before every live show so that if people have anything, they can always contact me and they are welcome to participate in any of our shows. We are here to discuss, debate. We are not making mockery of anyone as they are trying to do. We speak science and we play only the public videos which are in the public domain. You can always cross-check. Thank you, sir. Take care. Wonderful to host you once again. Always a pleasure. Always a pleasure. Wonderful. And this will be retelecasted with the permission of Dr. Aravind Kushwaha-ji because yes, exposed everything. I may change the title or the images in that before I come back with the retelecast. Up to you. Up to you. No problem. We will soon announce the retelecast of this, such a wonderful thing. And till that time, I hope we have been doing a great job to sensitize, to give you proper information so that people will become very resourceful, mindful of their life and of their health so that the entire India can have Sukha Nidra Shubharatri for the world over. Good morning, good afternoon and good evening. Thank you, sir. Take care. Thank you Bye. so much. Thank you so much.